Hello everyone, welcoming all of you to my classes, Akil's classes. Today I am going to discuss regarding final accounts of proprietorship firm. Final account is prepared at the end of the accounting year to know the actual profit or loss of organizations. Those who are profit-seeking organizations, their motive is to earn profit. They are preparing trading account, PL account and balance sheet. In case of partnership firm, they are preparing trading account, PL appropriation account and balance sheet. And in case of companies, they are preparing nowadays a modern merged, which is income statement. And below income statement, it is given how much amount is to be transferred to general reserve or reserve fund or any other fund from profit and loss, net profit, which is a part of PL Appro. So our discussion topic is final account of proprietorship firm. In partnership firm, another account is prepared, that is profit after PL. In partnership firm, it is prepared PL appropriation account, which is to be discussed in my next lecture. And in case of companies, they are preparing income statement. But in case of companies, nowadays a modern Companies Act 2013, as per Companies Act 13, company has to prepare income statement. Before that, company has to prepare trading PL Appro and balance sheet like partnership firm. But nowadays, companies are preparing income statement, combination of trading and PL, and below income statement after profit after tax, note schedule is given for transferring amount to PL Appro, and after that for balance sheet also and for income statement also, companies, it is mandatory for a company to prepare notes of account. Notes of account means detailed working is to be shown separately, and in case of income statement we have to give only the note number and total of that head. Okay. In case of balance sheet we have to prepare notes of account, and only in the balance sheet only give the head and their total. We will discuss later on. Now today I am going to discuss you regarding final accounts of proprietorship firms. So another type of final account is non-profit seeking organization. This is the final account of profit seeking organization. Profit seeking means those organizations which have motive to earn profit. Okay. Now, final account of proprietorship firm, final account of profit seeking organizations. In case of non-profit seeking, they are preparing receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. So what does it mean, profit seeking? Profit seeking means those organizations which have motive to earn profit and they are dealing with the purchase and sale of goods, most importantly. And non-profit seeking means their objective is not to earn profit but to give service to the people. So when they are giving service to the people, they are not dealing with the purchase and sale of goods. So non-profit seeking organization means they are not dealing with the purchase and sale of goods. They are dealing with the service. So they are going to prepare receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. So today's topic is final account of profit seeking organization means they are dealing with the purchase and sale of goods. So when they are dealing with the purchase and sale of goods, they are going to prepare trading account, it's a purchase and sale account and profit and loss account and balance sheet. Okay. Final accounts of profit seeking organization. So they are prepared trading account, profit and loss account, and at the end of the accounting year, after turning PL, they are preparing balance sheet.
It's a financial statement. Balance sheet is a financial statement. It is prepared with the assets and liabilities. It is also known as sources and application of fund. Source means liability. Liability are the sources of fund where the organization getting fund, and assets is application of fund where the fund is being used. Okay. Now, trading account means it's a purchase and sale account. In trading account, we are going to record all those expenses which are directly affecting production, which have direct relation with the production, like opening stock, purchases, carriage inward. There are two types of carriages. One is carriage inward, another is carriage outward. Carriage inward means carriage on purchases. It will appear in trading account. And carriage outward means carriage on goods sold. It will appear in profit and loss account. Wages and salaries both are different. Wages paid to the laborer who is working in a factory for production of goods, and salaries paid to the office staff who is working in an office. So wages are paid on a weekly basis and salaries are paid on a monthly basis. So all factory expenses which are affecting production directly are recorded in trading account, and those expenses which do not have any relation with the production but those are incurred for maintaining our office, that is indirect expenses and indirect incomes, are part of profit and loss account. And in trading and PL account, we are recording only revenue income and revenue expenditure. So what does it mean, revenue expenditure? Revenue expenditure means those expenses which are incurred frequently or recurring in nature. And revenue income means those expenses which are incurred on a regular basis. ट्रेडिंग पीरियड में कौन सा रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? इन ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो एक्सपेंस और इनकम जो मेरा प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. जो एक्सपेंस नहीं होने से मेरा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा और आफ्टर प्रोडक्शन उसको हम बेचते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम. सो ये पार्ट है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा आता है? वो एक्सपेंस और इनकम जिसका रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है बट जिसका रिलेशन ऑफिस के साथ है. इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम. और ये ट्रेडिंग ऑन में कौन सा एक्सपेंस आता है? जो एक्सपेंस मेरा रेवेन्यू इन नेचर है और वो इनकम आता है जो मेरा रेवेन्यू इन नेचर है. अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेंसेस मेरा डेली हो रहा है फ्रीक्वेंटली, जैसा परचेजेज, वेजेस मंथली में होता है, परचेज डेली होता है, सैलरीज मंथली में पेड करते हैं, रेंट मंथली पेड करते हैं, सेल्स मेरा डेली होता है. ये सारा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन paid on a monthly basis installment. So those expenses and income which have been incurred frequently or recurring in nature are a part of trading and PL account. और जो expenses income frequently नहीं होता है, that means capital expenditure and capital income, वो है मेरा assets capital expenditure है, liability capital income है. That expenditure and income are a part of balance sheet. एसेट्स और लाइबिलिटी मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम, वो मेरा बैलेंस शीट का पार्ट है. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ अब बनाएंगे हम लोग फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स के साथ. अब एग्ज़ाम में जो है 11 कॉमर्स में भी आता है, हर बोर्ड्स में HS, ISC, CBSC और NIS बोर्ड में तो कंबाइंड होता है. 11-12 का बोर्ड्स का फाइनल एग्ज़ाम में ही आता है, क्योंकि 11 NIS बोर्ड में 11 और 12 कंबाइंड होता है. HS, ISC, CBSC का 11 अलग होता है, 12 अलग होता है. और फाइनल अकाउंट ऑल्सो अ कंपल्सरी क्वेश्चन इन BCom फर्स्ट सेमेस्टर बोथ फॉर ऑनर्स एंड पास. सो माई लेक्चर इज गोइंग टू बी हेल्पफुल to all the streams
and university examinations like HS, ISC, CBSE, NIS, IGNOU, and also BCom level examinations. Okay. Now I am going to discuss. I am going to giving you format of trading and PL account and also balance sheet. Which of the items will appear in trading account, which of the items will appear in profit and loss account, and which of the items goes to balance sheet. अब एग्ज़ाम में क्या होगा, तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है. अब सम्स कैसा रहेगा, सम्स ऐसा रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा. अब हम लोग को याद रखना होगा फाइनल अकाउंट करने के लिए कि जो आइटम मेरा ट्रायल बैलेंस में रहेगा दैट एंट्रीज विल अपेयर ओनली वंस. जो अकाउंट हेड मेरा ट्रायल बैलेंस में रहेगा वो एक ही जगह आएगा. जो ट्रेडिंग में आने वाला ट्रेडिंग में आएगा, जो पीएल में आने वाला पीएल में आएगा, और जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाला है वो बैलेंस शीट में ही जाएगा. ट्रेडिंग का आइटम पीएल में नहीं आएगा, पीएल का आइटम बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट का आइटम ट्रेडिंग में भी नहीं आएगा. बट जो एंट्रीज मेरा एडजस्टमेंट्स में रहेगा वो दो जगह आएगा. ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर अपेयरिंग ट्वाइस. एक्सक्यूज मी. से फॉर एन एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if it is given in the adjustments, will appear twice. One more thing I want to clear to you, all adjustment entries are appearing twice, either trading balance sheet or trading PL or PL balance sheet. हमेशा याद रखना. Say for an example, जो हर सम्स में ही रहेगा क्लोजिंग स्टॉक. बिजनेस कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं कि पूरा गुड्स तो सेल नहीं होता है. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एवरी ऑर्गेनाइजेशंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में रहेगा, हाउ इट इज़ टू बी एडजस्टेड. फर्स्टली क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, opening stock plus purchases plus all direct expenses, means those expenses which are appearing in trading account debit side. Direct means already told you those expenses which are affecting production directly or which are incurred in a factory. Without these expenses production would not be possible. जो एक्सपेंस नहीं होने से प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा. जो एक्सपेंस मेरा फैक्ट्री में होता है उस एक्सपेंस को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो स्टॉक को हम लोग माइनस करते हैं, इसीलिए वो क्रेडिट साइड में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक. अब ये एक जगह ट्रेडिंग में आ गया और एक जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट्स. क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा स्टॉक अनसोल्ड मेरा रह गया है वो मेरा करंट एसेट है. ठीक है. और एक एडजस्टमेंट अगर रहा आउटस्टैंडिंग वेजेस. वेजेस कहाँ आता है मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट में. तो वेजेस में ऑल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस विच हैव ऑलरेडी इनकर्ड बट नॉट पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. जो एक्सपेंस मेरा हो चुका है बट ऑर्गेनाइजेशन अभी तक, बिजनेस का जो ओनर है वो अभी तक पे नहीं किया है. मान लो वेजेस, मार्च में फैक्ट्री में लेबर लोग काम कर लिया बट मार्च का वेजेस अभी तक पेड नहीं किया है. तो मार्च का वेजेस तो ऑलरेडी लेबर लोग काम कर लिया है तो पेड तो करना है ना ऑर्गेनाइजेशन को. तो वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. तो जो वेजेस मेरा ट्रायल बैलेंस में रहेगा वो मेरा मार्च का उसमें इंक्लूड नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. वो कहाँ तक इंक्लूड है, फेब तक का वेजेस इंक्लूड है.
उसको लेना है, और जो मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस है उसको क्या करना है, ऐड करना है. आउटस्टैंडिंग वेजेस एडेड विद द वेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एडेड विद द सैलरीज इन पीएल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट एडेड विद द रेंट इन पीएल अकाउंट. तो जो जहाँ आता है उसको वहाँ पर आउटस्टैंडिंग को ऐड करना होगा. तो ट्रेडिंग में आ गया वेजेस का आउटस्टैंडिंग एक जगह, और एक जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में आएगा. दो जगह आ गया, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग बैलेंस शीट, और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग बैलेंस शीट. सिमिलरली पीएल बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग रेंट वो पीएल में आता है, रेंट में ऐड हो गया. और आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ में जाएगा, पीएल बैलेंस शीट. आउटस्टैंडिंग सैलरीज सैलरी में ऐड होगा और फिर बैलेंस शीट में जाएगा. तो जो भी प्रीपेड रेंट अगर रहा, प्रीपेड मतलब एडवांस पेड कर दिया, अप्रैल का वेजेस मार्च में पेड कर दिया, या अप्रैल का रेंट मार्च में पेड कर दिया, तो मार्च का जो अकाउंट बनाएंगे तो एडवांस पेड, मेरे एसेट्स हो गया, हमको और पे नहीं करना है. तो प्रीपेड जो भी रहता है, प्रीपेड रेंट रेंट से लेस होगा, प्रीपेड सैलरी सैलरी से लेस होगा, प्रीपेड वेजेस वेजेस से माइनस होगा. क्लियर. तो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो जिसका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसमें ऐड करना है, प्रीपेड रहेगा तो जिसका प्रीपेड रहेगा उससे माइनस करना है. ओके. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर बोलता है स्टॉक यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़, हम लोग को मालूम है एनीथिंग विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ is debited to drawings account. It includes cash and goods both. If anything means cash or and goods, if both are withdrawn for personal use, will be debited to drawings account. drawings में क्या आता है, कोई भी चीज़ अगर विड्रू करते हैं हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे कैश हो या गुड्स हो, वो ड्राइंग्स में डेबिट होता है. तो जो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स रहेगा वो कैश ड्राइंग्स है, और अगर एडजस्टमेंट में रहा गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, वो भी मेरा ड्राइंग्स है. तो ये दो जगह आएगा, एक ओपनिंग स्टॉक से लेस होगा और एक बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ट्रायल का जो ड्राइंग्स है उसके साथ ये ड्राइंग्स ऐड करके कैपिटल से माइनस करना होगा, तो हो जाएगा ना ट्रेडिंग बैलेंस शीट. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर रहा स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी, ये भी दो जगह आएगा, एक ओपनिंग स्टॉक से लेस होगा और एक स्टेशनरी कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑफिस में. तो ट्रायल में जो स्टेशनरी आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके साथ ये वाला ऐड होगा, स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर रहा स्टॉक यूज्ड एज सैम्पल, सैम्पल मीन्स फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस. ये अगर एडजस्टमेंट रहा तो ओपनिंग स्टॉक से लेस होगा, स्टॉक यूज्ड एज सैम्पल, और जो ट्रायल बैलेंस में रहेगा एडवर्टीजमेंट, उसके साथ ये वाला ऐड होगा. तो ट्रेडिंग पे हो गया दो जगह. और एक आते हैं हम लोग डिप्रिशिएशन. हम लोग को मालूम है, इसके पहले वाला चैप्टर बताया था डिप्रिशिएशन में कि डेप का जब लेजर बनाते क्या करते हैं, डेप में क्या करते हैं, टू मशीनरी बाय पीएल, तो पीएल का डेबिट साइड में आएगा. हम लोग को मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनली रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, एसेट्स नहीं आता है. जैसे बिल्डिंग का डेप, बिल्डिंग नहीं आएगा उसका डेप्रिसिएशन आएगा, और ये दो जगह आएगा. हम लोग को मालूम है कि डेप का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो बिल्डिंग का डेप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में बिल्डिंग से माइनस करेंगे, फर्नीचर का डेप फर्नीचर से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट दो जगह आया, पीएल बैलेंस शीट. तो डेप कहाँ आता है, पीएल का डेबिट में आएगा, और जिस एसेट का डेप है वो उस एसेट से माइनस होगा बैलेंस शीट में. गॉट माई पॉइंट. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट विच इज बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट. बैड डेप्ट जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो एक जगह आएगा. हम लोग को मालूम है कि ऑल आइटम्स विच आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस विल बी अपेयरिंग ओनली वंस. तो जो बैड डेप्ट मेरा ट्रायल बैलेंस में रहेगा मीन्स it is already adjusted with the amount of the debtors given in the trial balance. वो ऑलरेडी डेटा से एडजस्ट किया हुआ है.
सो जो बैड डेट मेरा ट्रायल बैलेंस में रहेगा वो एक जगह आएगा. सिमिलरली प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में रहेगा, बैड डेट कहाँ आता है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड में आता है. प्रोविजन कहाँ आता है मेरा? क्रेडिट साइड में आता है. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना फाइनल वन करने के लिए, आई एम टेलिंग ऑल द बोर्ड्स एंड ऑल्सो बीकॉम फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली कि जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में रहेगा, जो आइटम ट्रेडिंग में आने वाला है, ट्रायल डेबिट का मतलब ट्रेडिंग डेबिट, ट्रायल क्रेडिट का मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट. से फॉर एन एग्जाम्पल परचेजेस ट्रायल में कहाँ आता है? डेबिट साइड में. ट्रेडिंग में कहाँ आता है? डेबिट साइड. सेल्स कहाँ आता है ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग में कहाँ आता है? क्रेडिट साइड. वेजेस कहाँ आता है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड. ट्रेडिंग में कहाँ आता है? डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में कहाँ आता है? डेबिट साइड. ट्रेडिंग में कहाँ आता है? डेबिट साइड. फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय, ट्रक ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड में. ट्रेडिंग में कहाँ आता है? डेबिट साइड में. सिमिलरली पीएल, जो आइटम पीएल में आने वाला है एक्सक्यूज मी, ट्रायल डेबिट, पीएल डेबिट, ट्रायल क्रेडिट, पीएल क्रेडिट. सैलरीज कहाँ आता है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट में. पीएल में कहाँ आता है? डेबिट में. रेंट अगर डेबिट में रहा ट्रायल का तो डेबिट में आएगा, और रेंट अगर क्रेडिट में रहा, रेंट रिसीव, वो कहाँ आएगा? पीएल क्रेडिट में आएगा. कमीशन अगर ट्रायल का डेबिट में रहा, कमीशन पे डेबिट में आएगा पीएल का, और अगर ट्रायल क्रेडिट में रहा कमीशन मतलब कमीशन रिसीव, वो पीएल क्रेडिट में आएगा. डिस्काउंट डेबिट में रहा ट्रायल का तो पीएल का डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और अगर डिस्काउंट क्रेडिट में रहा ट्रायल का तो पीएल क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट रिसीव. सिमिलरली प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ रहता है? ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में रहता है. ट्रायल क्रेडिट मतलब पीएल क्रेडिट एक जगह आएगा बस. तो जो प्रोविजन तो जो प्रोविजन मेरा ट्रायल बैलेंस में रहेगा वो एक जगह आएगा. समझ में आया? ये था ट्रायल बैलेंस का आइटम. बैड डेट ट्रायल बैलेंस में रहा, बैड डेट कहाँ रहता है? डेबिट में रहता है. तो ट्रायल का डेबिट मतलब पीएल का डेबिट. प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ रहता है? ट्रायल क्रेडिट. तो ट्रायल क्रेडिट मतलब पीएल क्रेडिट. गॉट माय पॉइंट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आई एम कमिंग टू एडजस्टमेंट्स. अगर बैड डेट एडजस्टमेंट्स में रहा मीन्स इट इज़ अ फर्दर बैड डेट विच वॉज not adjusted with the amount of the debtors given in the trial balance. जो बैड डेट मेरा एडजस्टमेंट में रहेगा मतलब वो डेटर से एडजस्ट नहीं किया हुआ है, मतलब डेटर से माइनस नहीं किया हुआ है. और बैड डेट भी मेरा एडजस्टेड नहीं है. तो जो बैड डेट मेरा एडजस्टमेंट्स में रहेगा वो दो जगह आएगा, अपेयरिंग ट्वाइस. ऑलरेडी टोल्ड यू all adjustment given in the trial all adjustments given will be appearing twice. तो जो बैड डेट मेरा एडजस्टमेंट में रहेगा दो जगह आएगा. एक जो बैड डेट मेरा ट्रायल बैलेंस में है उसके साथ ऐड होगा पीएल में, और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो क्रिएट करने बोलता है डेटर्स पे, जब प्रोविजन निकालेंगे तो डेटर से क्या करेंगे हम लोग? फर्दर बैड डेट को माइनस करके प्रोविजन निकालेंगे. और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो क्रिएट करने बोलता है वो दो जगह आएगा. एक पीएल का डेबिट में आएगा, और सेकेंडली इट विल डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द डेटर्स इन द बैलेंस शीट. व्हाट माय पॉइंट? सो जो बैड डेट मेरा एडजस्टमेंट में रहेगा वो दो जगह आएगा. एक पीएल में बैड डेट के साथ ऐड होगा और दूसरा डेटर से माइनस होगा. और एक एडजस्टमेंट बोलता है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. वो कैसे निकालेंगे? जो बैलेंस डेटर्स है मेरा, मतलब फर्दर बैड डेट लेस करने के बाद, प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस करने के बाद जो डेटर्स का अमाउंट रहेगा उसमें निकलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. वो पीएल का डेबिट में आएगा, और वही डिस्काउंट ऑन डेटर्स बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा. गॉट माय पॉइंट? और अगर बोलता है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये भी क्रेडिटर्स पर निकाल कर पीएल क्रेडिट में आएगा. इट्स अ गेन फॉर द बिजनेस. और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स से माइनस होगा बैलेंस शीट में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ एंड द लास्टली
Goods destroyed by fire. Most important adjustment for exam purpose. Goods destroyed by fire, suppose it is given 15,000. But insurance company admitted a claim of 10,000. अगर ये एडजस्टमेंट दे दिया तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? टोटल जो लॉस हुआ मेरा एबनॉर्मल लॉस, उसका जनरल एंट्री क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो टोटल जितना गुड्स मेरा लॉस्ट हुआ है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना एडमिट किया? अभी तक मिला नहीं है, एडमिटेड, येट टू बी रिसीव्ड, रिसीवेबल, तो वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 10,000। 15,000 मेरा लॉस हुआ है, 10,000 इनको क्लेम मिलने वाला है, 5,000 which would not be recovered from the insurance company, it is a loss for the organization. तो लॉस ऑन क्लेम कहाँ आएगा? 5,000, it will appear on the PL account debit side. Got my point? Another most important adjustment is interest on loan. Suppose loan amount given is 1 lakh, 10% लोन बता रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, मतलब होल अमाउंट वॉज आउटस्टैंडिंग। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। इसका दो तरीके से ट्रीटमेंट है। एक, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, सो दिस 10,000 विल अपेयर ऑन द PL अकाउंट डेबिट साइड। मतलब ड्यूरिंग द ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट पेड एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बिजनेसमैन इंटरेस्ट ऑन लोन टोटली नहीं पे किया है, 10,000 फॉर 1 ईयर। यही 10,000 जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में लोन के साथ ऐड होगा, एक्यूमुलेटेड। फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, मान लो 10,000 मेरा इंटरेस्ट निकल रहा है बट इट इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इंटरेस्ट ऑन लोन एज 6,000। सो हम लोग को 10,000 पे करना था, 6,000 गिवन इन द ट्रायल बैलेंस मीन्स मेरा 4,000 आउटस्टैंडिंग है। तो एंट्री कैसे करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड 6,000 ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 4,000, दोनों को ऐड करके आउटर में आएगा 10,000 विच इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 1 ईयर ऑन 1 लाख। अब बैलेंस शीट जो बनाएंगे 1 लाख के साथ 10,000 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज आउट ऑफ 10,000 6,000 इज ऑलरेडी पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बैलेंस शीट में कितना ऐड करेंगे हम लोग? ओनली द एडजस्टेड पार्ट विच इज आउटस्टैंडिंग 4,000। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा? एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब आते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? इफ क्रेडिट साइड इज मोर, क्या निकलेगा डेबिट में? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट ज़्यादा हुआ तो क्या निकलेगा? बाय ग्रॉस लॉस। जीपी निकलता है डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे हम लोग? PL अकाउंट क्रेडिट साइड। ग्रॉस लॉस निकलता है ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, ट्रांसफ़र कहाँ होगा? PL अकाउंट डेबिट साइड। अब PL में क्या एंट्री कैसे करेंगे? सारा एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, करने के बाद PL का अगर मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो क्या निकलेगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट ज़्यादा हुआ बाय नेट लॉस। नेट प्रॉफिट अगर निकला तो कैपिटल के साथ NP ऐड होगा, और नेट लॉस अगर निकला तो कैपिटल से नेट लॉस माइनस होगा। अब बैलेंस शीट में कौन सा आइटम आता है? जो आइटम ट्रेडिंग बिल में नहीं आता है, मतलब जो डेबिट में है मतलब वो एसेट्स है, और जो क्रेडिट में वो लायबिलिटी है। और बैलेंस शीट किससे बनता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑल्सो विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू फॉर्मेट। Note down my notes which is helpful for exam purpose. Which of the entries you have to record in trading account? I am giving you combined format. Write down in the books of. Write down in the books of. Now I am giving you trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account for the year ended. Okay, because final account is prepared on yearly basis. That is why it is given year ended. After closing of your books of account at the end of the accounting year for 1 year. Now the financial year is beginning on 1st April and end on 31st March. It is uniformly applied for all the organization for income tax purpose. इनकम टैक्स पर्पस के लिए ये प्रीवियस ईयर हर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है, हर
कंपनी को मानना पड़ेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट अब क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस स्टॉक इज फॉर पर्सनल। ओपनिंग स्टॉक से क्या माइनस करेंगे हम लोग, जो एडजस्टमेंट में रहेगा, स्टॉक इज फॉर पर्सनल, ये ओपनिंग स्टॉक से माइनस होगा और बैलेंस शीट में ड्राइंग्स के साथ ऐड होगा। 2 अपेयरिंग ट्वाइस। स्टॉक यूजर स्टेशनरी, ये भी 2 जगह आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से लेस होगा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा स्टॉक यूजर स्टेशनरी, और पीएल में स्टेशनरी के साथ ऐड होगा। ओके, ये स्टॉक का एडजस्टमेंट, स्टॉक यूज्ड एज सैंपल, ये भी एडजस्टमेंट में रहेगा, ओपनिंग स्टॉक से लेस होगा, और पीएल अकाउंट जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडवर्टीजमेंट के साथ ये वाला ऐड होगा। ओके, व्हाट माय पॉइंट। और एक चीज, परचेज से रिटर्न माइनस होता है। होप यू ऑल ऑफ यू हैव नोन कि परचेज मेरा डेबिट होता है, उसका रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स होता है क्रेडिट, उसका रिटर्न क्या होता है, डेबिट। तो जो अगर सम में दिया हुआ रिटर्न दिया हो रहा, तो जो रिटर्न मेरा डेबिट में रहेगा वो मेरा सेल्स रिटर्न है, वो सेल्स से माइनस होगा, और जो रिटर्न मेरा क्रेडिट में रहेगा वो परचेज से माइनस होगा। सिंपली याद रखना कि परचेज डेबिट होता है, उसका रिटर्न होता है क्रेडिट, सेल्स होता है क्रेडिट, उसका रिटर्न होता है डेबिट। ओके, लेस परचेज रिटर्न। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय कोर्स अभी मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट, इट इज अपेयरिंग ट्वाइस, ये 2 जगह आएगा, एक ट्रेडिंग में आएगा और एक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एब्नॉर्मल लॉस, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, टोटल जितना लॉस होगा ट्रेडिंग में आएगा, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा एब्नॉर्मल गुड्स के अगेंस्ट में वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, और जो अमाउंट हम लोग का रिकवर्ड नहीं होगा इंश्योरेंस कंपनी से, लॉस ऑन क्लेम, वो कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट होगा। सो ट्रेडिंग में और भी आइटम आएगा जो हम रब करने के बाद लिखेंगे। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ओपनिंग स्टॉक, लेस स्टॉक यूज फॉर पर्सनल यूज, आफ्टर दैट लेस स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी, आफ्टर दैट लेस स्टॉक यूज्ड एज सैंपल। ये लेस करने के बाद ऑर्डर में जाएगा, परचेज लिखेंगे, लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लिखेंगे, लेस सेल्स रिटर्न, देन क्लोजिंग स्टॉक, देन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, अब ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, ऑलरेडी डिस्कस, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, आउटस्टैंडिंग उससे ऐड होता है, वेजेस ऐड, ये भी एडजस्टमेंट में रहेगा, वेजेस स्टार में रहेगा, एक जगह आएगा, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में रहेगा, प्रीपेड एडजस्टमेंट में रहेगा। ओके, एडेड, ये आउटस्टैंडिंग कहाँ रहेगा, एडजस्टमेंट में, ट्रेडिंग में आया, और एक जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, लायबिलिटी। ओके, to freight, to carriage inward, to manufacturing expenses, to octroi, ट्रक का ड्यूटी पेड कर रहे हैं हम लोग, गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए,
So trading account is a production account. It is used to know the actual production cost for producing the goods. Okay. To import duty, to dock charges, और शिप में आना goods. Okay. So these are the expenses to be recorded on the debit side of trading account. Two wages, add outstanding wages. Outstanding क्या होता है? The expenses which are already incurred but not paid by the organization. जो हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, इसलिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है. वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड होगा ट्रेडिंग में, सैलरी का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रीपेड अगर रहा तो वो लेस होगा. फ्रेट, गुड्स को लाने के लिए हम लोग फ्रेट पेड कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए. कैरेज इनवर्ड, कैरेज एंड परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, फॉर प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री. ऑक्ट्रॉय ट्रक का ड्यूटी पेड कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी पेड कर रहे हैं गुड्स को लाने के लिए, डॉक चार्जेस, शिप का ड्यूटी पेड कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आएगा हम लोग अब बैलेंसिंग करेंगे. जैसे हम लोग लेजर का बैलेंस करते हैं, इफ क्रेडिट साइड इज मोर, अगर मान लो इसका टोटल ज़्यादा होता क्रेडिट साइड का, तो क्या निकलेगा डेबिट में? टू ग्रॉस प्रॉफिट, बोलते जीपी, विच इज ट्रांसफर टू वेयर? ट्रेडिंग से कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. If credit side is more, balancing figure will be gross profit on the debit side of trading account. Okay? अब हम लोग आते हैं, अगर मान लो डेबिट ज़्यादा हो गया तो बैलेंसिंग क्या निकलेगा? बाय ग्रॉस लॉस. So from trading account, either gross profit or gross loss incurred. Okay. So GP कहाँ निकला? ट्रेडिंग का डेबिट साइड में. ट्रांसफर कहाँ होगा? PL क्रेडिट. आई एम गिविंग यू हेडिंग ट्रेडिंग एंड PL, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर. सो जब हेडिंग लिख दिया ट्रेडिंग PL के लिए अलग से कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंटिन्यू होगा. ओके. और ग्रॉस लॉस निकलना क्रेडिट में, ट्रांसफर कहाँ होगा? PL का डेबिट में. ओके. Now I am showing you profit and loss account. Okay. Now, it's a profit and loss account. After trading, you are going to prepare profit and loss account. तो जीपी कहाँ निकला था? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ ट्रांसफर होगा PL क्रेडिट साइड. जीपी ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. ग्रॉस लॉस कहाँ निकलना मेरा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रांसफर कहाँ होगा? PL डेबिट साइड. टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन. So either GP or gross loss. अब हम लोग ऑलरेडी पता है PL में क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस इनकम विच आर इनडायरेक्ट इन नेचर, जिसका रिलेशन फैक्ट्री के साथ नहीं है बट ऑफिस के साथ है. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड. इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, आउटवर्ड PL में आता है. टू सैलरीज. अब अगर मान लो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसमें सैलरी में ऐड होगा. जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड होगा, सैलरीज का आउटस्टैंडिंग सैलरीज में ऐड होगा, रेंट का आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड होगा. और प्रीपेड अगर रहा, प्रीपेड वेजेस वेजेस से लेस होगा, प्रीपेड सैलरी सैलरी से लेस होगा, प्रीपेड रेंट रेंट से लेस होगा. और ये एडजस्टमेंट दो जगह आएगा. अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी रहा
तो सैलरी में ऐड होगा पीएल में, और बैलेंस शीट में कहाँ का लाइबिलिटीज़ में आएगा। और अगर प्रीपेड सैलरी जाता तो सैलरी से माइनस होगा, और प्रीपेड क्या है मेरा एडवांस पेड, इट इज़ एन एसेट। प्रीपेड कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, एसेट्स में आता है। सो ऑल एडजस्टमेंट अपेयरिंग ट्वाइस, आइदर ट्रेडिंग बैलेंस शीट और पीएल बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल। पेंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, स्टॉक यूज या स्टेशनरी, ये ट्रेडिंग पीएल हो गया। एडजस्टमेंट में था स्टॉक यूज या स्टेशनरी, क्या दिखाया था, ओपनिंग स्टॉक से लेस किया था ट्रेडिंग में, और पीएल में ऐड हो रहा है, ट्रेडिंग पीएल हो गया। ओके, नाउ एडवर्टीजमेंट, इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, ऐड स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी, यूज्ड एज सैंपल, सॉरी यूज्ड एज सैंपल, स्टेशनरी स्टॉक स्टेशनरी में ऐड होगा, सैंपल मींस फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। तो ये ओपनिंग स्टॉक से लेस किया था ट्रेडिंग में, और यहाँ पे ऐड करेंगे एडवर्टीजमेंट के साथ। डिस्काउंट और क्रेडिट में रहेगा, हम लोग बोला है ट्रायल डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट, पीएल डेबिट जो आने वाला है, ट्रायल क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट जो आने वाला ट्रेडिंग में, पीएल में जाने वाला पीएल क्रेडिट। तो डिस्काउंट कहाँ आता है, पीएल में आता है। अगर डिस्काउंट डेबिट में रहेगा तो पीएल का डेबिट में आएगा, डिस्काउंट क्रेडिट में रहेगा तो पीएल क्रेडिट में आएगा। रेंट अगर डेबिट में रहेगा तो पीएल का डेबिट में आएगा, रेंट क्रेडिट में रहेगा तो पीएल क्रेडिट में आएगा। बाय रेंट रिसीव्ड। प्रोविजन फॉर बैड डेट, अगर ट्रायल में रहा तो एक जगह आएगा, प्रोविजन कहाँ आता है, ट्रायल में, इसमें क्रेडिट में आता है, ट्रायल क्रेडिट, पीएल क्रेडिट। ओके, नाउ टू रेंट, मान लो प्रीपेड रेंट दिया तो क्या करेंगे, लेस प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है, तो ये प्रीपेड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट्स में जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट डेबिट में रहा तो पीएल का डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट में रहा तो डिस्काउंट रिसीव। कमीशन अगर डेबिट में रहा तो डेबिट में आएगा, और अगर कमीशन मान लो क्रेडिट में रहा तो क्या लिखेंगे, बाय कमीशन रिसीव। तो ट्रायल का जिस तरफ आएगा ट्रेडिंग बिल को उसी तरफ आएगा। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी जैसे बताया था टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वही इंटरेस्ट आउटर में आएगा, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रहेगा तो उससे क्या करना होगा, जितना इंटरेस्ट आएगा उसमें ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग, टू गेट द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 1 ईयर। टू लॉस ऑन क्लेम, ये बताया था 15,000 लॉस हुआ है, 10,000 क्लेम मिला है, 5,000 जो मिलने का उम्मीद नहीं है तो वही वाला यहाँ पे आएगा, लॉस ऑन क्लेम। ओके, एसेट्स नहीं आता तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट पे डेट चार्ज होता है, ऑलरेडी हैव डिस्कस। डेट इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट एंड डेट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो डेट अगर एडजस्टमेंट में रहेगा दो जगह आएगा, एक पीएल का डेबिट में आएगा और एक बैलेंस शीट में जिस एसेट्स का डेबिट आएगा उससे उसको माइनस करना है। फर्नीचर का डेबिट फर्नीचर से माइनस होगा, बिल्डिंग का डेबिट बिल्डिंग से माइनस होगा, मशीनरी का डेबिट मशीनरी से माइनस होगा। ठीक है, अब पीएल से क्या निकलता है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर क्या निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट ज्यादा होगा क्या निकलेगा, बाय नेट लॉस। और एक चीज आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पीएल में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, दो जगह आएगा, एक पीएल का डेबिट में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना आएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल के साथ ऐड होगा। इफ क्रेडिट साइड इज मोर, बैलेंसिंग क्या निकलेगा पीएल में, टू नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग से क्या निकलता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट जो पीएल क्रेडिट में आता है, और पीएल से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट।
पीएल के बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो एनपी अगर निकलता है क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के साथ एनपी क्या होगा, ऐड होगा। और अगर डेबिट ज्यादा होगा क्या निकलेगा यहाँ पे, बाय नेट लॉस। इट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि एनपी अगर निकलता है तो बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड होगा और कैपिटल इंक्रीजेज, और अगर नेट लॉस निकलता है और कैपिटल डिक्रीजेज। सो इसलिए नेट लॉस क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे, और एनपी क्या करेंगे, कैपिटल से ऐड करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आई एम गोइंग गिविंग यू फॉर्मेट रिगार्डिंग बैलेंस शीट. Okay, how to draw a balance sheet with the help of assets and liabilities and also with the help of adjustments. Write down in the books of. Previously it was written as in the books of next trading and PL account. Now trading and PL is completed, and after PL account and trading account we are going to prepare balance sheet. So we have to give the separate head for that. Balance sheet as at liabilities, amount, detail and total, assets, detail and total. Okay, first we have to write down capital. Below that add net profit during the year. अगर एनपी निकलता है तो ऐड होगा, और अगर लॉस निकलता है लेस नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर. ओके, आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. अगर एनपी निकलता है नेट प्रॉफिट तो ऐड करेंगे, नेट लॉस निकलता है तो माइनस करेंगे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऐड फर्दर कैपिटल. अगर रहा तो वो ऐड होगा. ऐड क्या करेंगे हम लोग, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो मेरा एडजस्टमेंट में था दो जगह आएगा, पीएल का डेबिट में आया था और कैपिटल में ऐड होगा. लेस ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में रहा था वो कैश ड्राइंग्स है. और पहला जो एडजस्टमेंट लिखा था स्टॉक यूज फॉर पर्सनल यूज, ये ओपनिंग स्टॉक से लेस हुआ था. और जब बैलेंस शीट जब बनाएंगे, जो मेरा ट्रायल बैलेंस का ड्राइंग्स है उसके साथ वो गुड्स ड्राइंग्स ऐड करके कैपिटल से माइनस होगा. So drawing means cash plus goods दोनों ऐड करके तो ऑर्डर में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोन. उसमें ऐड करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. ऑर्डर में जाएगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे मशीनरी. माइनस क्या करें हम लोग उससे, लेस डेप्रिसिएशन. जो मेरा एडजस्टमेंट था दो जगह आएगा. ऑल एडजस्टमेंट्स अपेयरिंग ट्वाइस. तो डेट मेरा पीएल का डेबिट में आता है और जिस एसेट का डेबिट वो बैलेंस में माइनस होता है. नेक्स्ट अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा. ट्रेडिंग में आता है, बैलेंस शीट में आएगा. ओके, लेस डेटा से क्या माइनस होगा, फर्दर बैड डेट माइनस होगा. और क्या माइनस होगा, ये एडजस्टमेंट में रहता है फर्दर बैड डेट. एक तो बैड डेट के साथ ऐड होगा और दूसरा अब आते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल. ये भी एसेट्स है.
Insurance claim receivable, prepaid expenses, cash in hand, cash at bank. करने के बाद both sides should be equal. In PL account, one thing should be noted regarding bad debt and provision for bad debt. So, in PL account, it is also a full part of balance sheet is given. In PL account, one more thing to be noted there. In debit side of PL account, I forgot to write in about that. In PL account, write down 2 bad debt. After that, add further bad debt. Further bad debt given in the adjustment. It is added with the bad debt in PL account. Most important adjustment. I am showing you now separately for clearing a concept. If further bad debt given in the adjustment, you have to add with the bad debt in PL account. अगर bad debt रहा adjustment में तो क्या है मेरा further bad debt 2 जगह आएगा. bad debt में add होगा और जब बैलेंस शीट जब बनाएंगे क्या करेंगे हम लोग उसको डेटर से माइनस करते हैं. लिखा है ना अभी 2 जगह आ गया. It's the most important concept. I'm showing you separately now. Nextly, अगर तुमको बोलता है एग्जाम में create a provision for bad debt on debtors, तो किस में निकलेगा? bad debt 2 जगह आया है. एक bad debt में ऐड हुआ और एक डेटर से माइनस हुआ. 2 जगह आ गया पीएल बैलेंस शीट. नाउ अब प्रोविजन किस में निकलता है? डेटर्स में निकलता है. तो अगर फर्दर बैड डेट रहा तो डेटर से क्या करेंगे हम लोग? फर्दर बैड डेट को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर निकलेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट. ओके. सपोज तुम्हारा ट्रायल बैलेंस पे बैड डेट दिया 5000 और फर्दर बैड डेट बोल रहा है 2000, तो टोटल बैड डेट कितना हो गया? 7000. नाउ डेटर्स तुम्हारा बैलेंस शीट में दिया है 60000. फर्दर बैड डेट कितना है मेरा? 2000. तो अब मेरे डेटर्स कितना हो गया? 58000. अब इसी 58 में निकालने बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. तो इसमें निकलेगा 58 का 5% कितना हो रहा है? 5% ऑफ 58,000 हाउ मच? 2900. ये प्रोविजन कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट्स में. तो ये 2 जगह आएगा. एक पीएल का डेबिट में आएगा और एक कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा. व्हाट माय पॉइंट? और एक एडजस्टमेंट जो बताएंगे सेपरेटली वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. अगर बोलता है 3% निकालने के लिए तो आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल बी क्रिएटेड. तो डिस्काउंट किस में निकलेगा? दिस इज बैलेंस. डेटर्स कितना है मेरा? डेटर्स से फर्दर बैड डेट को माइनस किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट को माइनस किया. अब मेरे डेटर्स कितना आ गया? 55,100. इस पर निकलेगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स. Provision for discount on debtor 3%. 3% of how much? Three percent of 55,100. 1653. These amount deducted from debtors. What's the point? सो ऑल एडजस्टमेंट अपेयरिंग ट्वाइस. ये भी देखो पीएल का डेबिट में आया और डेटर से माइनस होगा जितना क्रिएट किया. प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर्स में निकाला, पीएल का डेबिट डेटर से माइनस हुआ. फर्दर बैड डेट में एडेड डेटर से माइनस. तो ऑल एडजस्टमेंट अपेयरिंग ट्वाइस. अगर और एक एडजस्टमेंट बोला अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये कंपनी का गेन है. मान लो अगर निकालने वाला 2% तो क्रेडिटर्स कहाँ आता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है. सपोज मान लो क्रेडिटर्स दिया हुआ 1 लाख. इट इज गिवन क्रेडिटर्स 1 लाख. 2% कितना होगा? कम. 1 लाख कितना होगा? 2% 2000. ये भी एडजस्टमेंट में है.
PL क्रेडिट और फिर क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिटर से माइनस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2000, मेरा क्रेडिट कितना हो गया 98. So all adjustments are appearing twice, which have been shown to you. PL balance sheet, PL balance sheet, PL balance sheet, PL balance sheet. Okay? Hope you understand this concept. Please subscribe, share, like my video to give you further notification regarding that. From today's session, I am Akhil sir. Goodbye to all of you. Thank you.